Shri Sahab, Secretary Ahsan Bhai, Honorable Director Professor Aseem Kumar, my dear friend Masood, team, respected Judge Sahab sitting here, respected Vice Chancellor Sahab, members of the NASET and MES, ladies and gentlemen, and my dear students. It is a pleasure for me to welcome you to this function. You know, this campus is named after Maulana Azad, and every year we try to remember him and to pay our respect. This year also, although Sri Maulana was born, as Shafiwa mentioned, on the 11th of November, 1888 at Makkah Mukarramah. And this year also we had a function from 12th to 14th. We had sports here. Now this is the concluding function today when we are listening to these wonderful speeches. There is a word in English called polymath. If you look at the dictionary, it means someone who excels in multiple faculties. Maulana Azad was truly a polymath. If you look at him as an Islamic scholar, even today, his commentary and his translation of the Holy Quran, the Tarjuman of Quran, is a world standard in Quranic literature. If you look at him, and you know when he was writing this Tarjuman of Quran, where was he? He was in jail in Ranchi. His wife had died, and the Britishers did not allow him to go and attend the funeral. And Maulana writes that since I could not go, in the campus of the jail, there was a grave. So we might remember that. And he would go to that grave to offer Fatiha, keeping in mind that perhaps there is a similar grave in which my wife is buried. This was the greatness of that man. In the hour of crisis, he sits down, writes a book which becomes a standard textbook for Quranic literature. Look at him as a freedom fighter. He was the right hand of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru. The youngest man to become president of the Indian National Congress with the largest number of terms. The Nightingale of India, Sarojini Naidu said, she was a very quick-witted lady. She said, when Maulana Azad was born, he was 40 years old. Meaning thereby that he had inherited these extraordinary qualities of mind. Look at him as a statesman. He was the greatest, next to Gandhi perhaps, the greatest upholder of Hinduism. About to be declared, he kept on saying the partition should not take place. Partition is a mistake. It should not take place. We cannot change history. Obviously, we can't change history. But imagine today in India, we had Pakistan also, in which Bangladesh also included. It is a powerful nation today. A nation which could challenge the कोई गार्जियन हमारे बच्चों से ये नहीं कहता है कि बच्चा तुमने पहले अच्छा इंसान अब खुद जीता लगता है। मिसाल अगर देखें पुराने इसमें देखें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इंसानियत का मिसाल है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो क्या कहते हैं इसका मिसाल है, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो इंसानियत का मिसाल है। तो उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ लर्निंग प्रोसेस जो 6 साल तक वहां पर जो होता है, जिस तरह से हम अभी बात करते हैं, आप लोग बात करते हैं, जो रिकॉर्ड होता है, जिंदगी बनाया जाता है, उसी तरह से हमारे बच्चे 6 साल तक जो एक्टिविटी सीखते हैं माँ बाप से, रिश्तेदार से, वहां कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा समाज बहुत विखंडित हो चुका है। हमारे बच्चों को जो है बुराई से दूर रखना है कि झूठ की बात। कितने बच्चे हैं आप लोग दिल में हाथ रख करके बोलिएगा कि अब तक एक बार भी झूठ नहीं बोले? डियर स्टूडेंट, आप लोग दिल में हाथ रख करके बोलिए, कितने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार भी गिबत नहीं किया है? कितने लोग अपनी जिंदगी में एक बार भी बहतान नहीं फैलाया है? ये छोटी छोटी चीजें हैं
और इसी में अगर बात किया जाए अहंकार, ईगो, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी मजहब में किसी भी जगह ईगो के बारे में नहीं कहा गया है। और आज के टाइम में अहंकार में अगर देखें विश्व शांति खतरे में है। सिर्फ एक चीज सोचने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में ग्लोबल सिनेरियो अगर देखिए कि अलग अलग जो वर्ल्ड वॉर जो हो रहा है एक अहंकार की वजह से। और पहले डिवीजन में एक शायर ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्तान करने को एक उल्लू काफी था, या हर साथ में उल्लू बैठा है गुलिस्तान। सच बुक कीमत बहुतान है करीब तेरे दिल के, तेरी ये खामोशी जहन्नम का सबब न बन जाए, तेरी ये खामोशी जहन्नम का सबब न बन जाए। जो जानता सब कुछ है मगर सच बोलता नहीं। नफरत, खुदगर्जी, तसद्दुद, लालच, अना है किरदार तेरा। नफरत, खुदगर्जी, तसद्दुद, लालच, अना है किरदार तेरा। यही तो फितना है नशेमन की बर्बादी। हर किसी को मुयस्सर नहीं दिल का पाक होना, हर किसी को मुयस्सर नहीं दिल का पाक होना। अगर दिल पाक हो तो जन्नत भी है मुमकिन। हर शख्स परेशान है अपनी आदत से रकीब, हर शख्स परेशान है अपनी आदत से रकीब। अब वक्त आ गया है दुनिया में पढ़ोगे इंसानियत का, अब वक्त आ गया है दुनिया में पढ़ोगे। हाजिर होने का इत्तेफाक हुआ है और इसी हॉल में पिछली बार भी आपके सामने मैं था और यहाँ आने के पहले थोड़ी देर बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर साहब से हुई। मैंने इस बार कॉलेज को पिछली बार से बेहतर पाया और बहुत सी नई चीज़ें, अच्छे स्टेप्स स्टूडेंट्स के हक में, एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कॉलेज ने इंट्रोड्यूस किए। मुझे खुशी है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये अपील करूंगा कि उन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कीजिए, क्योंकि आप खुशकिस्मत हैं। बिहार का हर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और हर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज उस तरह से इतना पैशनेटली आपके बारे में नहीं सोच रहा है और कर रहा है जितना इस कॉलेज का मैनेजमेंट कर रहा है। चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग लैब हो, चाहे सॉफ्ट स्किल्स के लिए हो, चाहे प्लेसमेंट की बातें हो या अटेंडेंस इंप्रूव करना हो। तो ये आप लकी हैं कि ये सिर्फ फीस कलेक्ट करने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये आपको आज की लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए कॉन्शियस थॉट और कॉन्शियस एफर्ट वाला इंस्टीट्यूशन है। इसको अवेल कीजिए और इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ये भी उसका एक हिस्सा है। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की खिदमत को, उनकी शख्सियत को याद करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है और तफसील से उन पर बातें हुई हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने भी अच्छी तकरीरें की हैं। मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत मुख्तसर में अपनी बात रखूँगा। और ऐसे भी मौलाना आज़ाद की शख्सियत को अगर बयान करना हो, उनके कामों को, तो पूरा दिन भी नाकाफी है। तो मुझे बुनियादी तौर पर ये कहना है कि जंग आज़ादी में जो उनका कंट्रीब्यूशन था, जो योगदान था, वो अपनी जगह वैल्यूबल था और बहुत मुश्किल दौर में उन्होंने आज़ादी की तारीख में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि लीडरशिप दी। और महात्मा गांधी जी को और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और लीडरशिप जो थी उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन की, उनको सपोर्ट किया। लेकिन उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो आज़ादी मिलने के तुरंत बाद से शुरू हुआ, जिसकी तरफ थोड़ा इशारा भी किया गया है। उस वक्त उनका जो एक दर्दमंद दिल है, जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, जो मानवतावाद है, वो नजर आया। खास तौर से आज़ादी के तुरंत बाद जो वायलेंस हुआ बहुत, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए महात्मा गांधी जी ने यात्राएं की थी, अपील की थी, व्रत रखा था। मौलाना आज़ाद ने भी बिहार, बंगाल, पंजाब वगैरह राज्यों में जाकर के और लोगों को समझाया था कि आवेश में न आए, सांप्रदायिक भावनाओं में न बह जाएं और सौहार्द बनाए रखें। और इस बारे में उन्होंने लिखा भी, बयान भी दिए, स्पीचेस भी दी। और उसके साथ साथ थोड़ा पिछले जमाने से ही, आज़ादी के कुछ पिछले पहले के वर्षों से, वो वन नेशन थ्योरी पर, जो टू नेशन थ्योरी थी, उसको रद्द करने के लिए, उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए तकरीरें भी करते थे, आर्टिकल्स भी लिखते थे, किताबें भी, और हर तरह कोशिश करते थे कि जो इत्तेहाद है हिंदू मुस्लिम का, जो मिल करके एक मुल्क बनाते हैं, वो टूटने ना पाए। अब मुल्क की तकसीम तो एक मजबूरी थी कि करनी पड़ी,
लेकिन उसके बाद भी वो डैमेज कंट्रोल में उनका जो बहुत बड़ा योगदान रहा, जिससे बहुत जल्दी नॉर्मैलिटी आ सकी, सामान्य हालात आ सके, इसमें मौलाना आजाद का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आजादी के बाद ये भी बड़ी बात है कि उनको शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई, शिक्षा मंत्री बने, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी दी गई। तो जो हायर इंस्टीट्यूशन है रिसर्च के, टेक्नोलॉजी के, IIT है वगैरह, UGC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, और इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, उसके योगदान की बात होती है, आज भी हुई है। उस जमाने में वो इतने फॉरवर्ड लुकिंग थे, इतने आगे की सोच थी। वो जमाना बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का नहीं था, इंडिया भी पीछे था, लेकिन वो इंडिया को आगे लाने के लिए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर लाने के लिए उन्होंने जो सोचा, तब सोचा, उसके असरात, उसके फायदे अभी नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल, गांव के स्कूलों की तालीम, गांव के बच्चों की तालीम, एडल्ट एजुकेशन, इन चीजों की तरफ भी उनका ध्यान था, और उधर भी उसका योगदान उनका रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जल्दी साक्षरता और प्राइमरी एजुकेशन भी हो सकी, मुमकिन हो सकी। उस पर एक अलग से लिखने की या पढ़ने की या रिसर्च करने की जरूरत है, वो एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। तो कुल मिलाकर के उनकी जिंदगी हमें ये बताती है कि हर आदमी के बहुत से टैलेंट, बहुत सी एक्सपर्टीज, उसकी शख्सियत के बहुत से अंदाज हो सकते हैं। जो आदमी है वो किसी एक फील्ड का हो सकता है, आप इंजीनियर हो सकते हैं, कोई अफसर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ स्टेज पर लोग बैठे हुए हैं जो उसी फील्ड तक मौजूद नहीं है। तो मैं आपको आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि अपनी जो पर्सनालिटी है, आपका जो नॉलेज है, आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं, उसको मल्टीफेरियस रखिए। अलग अलग चीजों में आप अपनी चीजों को, अपनी सलाहियतों को डेवलप कीजिए, पहचान कीजिए, और कई चीजों में एक साथ आप एक्सेल कर सकते हैं। और आप ऐसा करेंगे तब आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो ज्यादा परिपूर्ण होगा, वो ज्यादा वास्ट आपकी थिंकिंग और कई तरह के आपके काम होंगे जो एक दूसरे के साथ मिल करके आपको एक प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ द सोसाइटी बनाएंगे, और देश के लिए योगदान देने के लिए आपको और बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। मैं इस मौके पर मौलाना आजाद कॉलेज के मैनेजमेंट को, मैसेट के मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये आज का फंक्शन आयोजित किया और हम सबको यहाँ आने का मौका मिला। मैंने भी जो बातें सीखी, मैं कुछ नई बातें सीख करके, जान करके जा रहा हूँ, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं यहाँ से प्रेरणा लेके जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि फिर जल्दी दोबारा यहाँ हाजिरी का मौका मिलेगा, और बहुत कुछ नई चीजें, अच्छी चीजें आपसे भी सुनूंगा और यहाँ के प्रोफेसर से भी सुनूंगा, और मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। Of Maulana Azad, let us rekindle his spirit, embracing his ideal as the guiding principle that shaped our collective destiny. Let us draw profound inspiration from his life and work to create a bright future. Most importantly, let us strive to build a society where every child has an opportunity to learn and grow. And before I conclude this occasion, I must say it was a memorable experience for all of us. And as the saying goes, every day holds the possibility. मौलाना आज़ाद कॉलेज में मौलाना आज़ाद दिवस के अवसर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सेवाओं को याद किया गया, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए उनके प्रयास को भी याद किया गया। ये बहुत अच्छा प्रयास था। मैं इसके लिए कॉलेज के प्रबंधन को हम ये कहेंगे कि मौलाना आज़ाद गुजर गए, चले गए, लेकिन उनका पैगाम हमेशा जिंदा है, और अगर इस देश को आगे बढ़ना है और बढ़ेगा इंशाअल्लाह, तो उसमें मौलाना आज़ाद की जो फिलॉसफी थी, उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो सोच थी, वो बहुत ज़रूरी है। वही इस देश को आगे बढ़ाएगी। वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सबसे बड़े अलंबरदार थे। वो जानते थे कि अगर हम सब मिलेंगे, मिलकर रहेंगे, तो देश बहुत आगे आ सकता है। तो बस हम लोग इसीलिए उनको याद करते हैं, और इसीलिए हमने नाम इस कॉलेज का रखा उन्हीं के नाम पर, कि एक हमेशा एक हमारे लिए एक लिविंग इंस्पिरेशन बने रही। थैंक यू। देखिए, अब सरकार भी बहुत कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है,
अब तो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन सरकार का काम और प्राइवेट का काम दोनों का अंदाज अलग अलग है। सरकार एक बड़ा हाथी हाथी चलता है तो अपने अंदाज चलता है, हम लोग थोड़े छोटे हैं तो हम अपने अंदाज चलते हैं, लेकिन जब दोनों मिलकर चलेंगे तो आगे बढ़ेगा। अब हेल्थ ही में देख लीजिए, अगर कोविड में प्राइवेट सेक्टर नहीं रहता तो हेल्थ का क्या हाल होता है वो आप जानते हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर चलना है आगे, और ये हो रहा है और इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगा। ये एक एजुकेशनल संस्था है, इसलिए जो भी इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर आज़ाद साहब के नाम पर रखा गया है इसको, और उनके पैगाम को आम करने की रखा गया है देशभक्ति के लिए। ये कहने को प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन हम इसको प्राइवेट कॉलेज नहीं मानते हैं, इसलिए किसी की संपत्ति नहीं है। ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी का कॉलेज है, और इसमें जितने लोग काम करते हैं फैकल्टी को छोड़ के मैनेजमेंट, ये सब ऑनररी हैं। एक में नया पैसा कुछ नहीं लेते हैं, ना हम एक पैसा गवर्नमेंट से लेते हैं और ना हम मैनेजमेंट एक पैसा लेता है। सारा काम कॉलेज का है, कॉलेज का जो पैसा आता है फ्री फीस से वो फैकल्टी पर और कॉलेज को डेवलप करने पर खर्चा किया जाता है। इसीलिए आप देखा होगा कि आज से 5 साल पहले और अब में फ़र्क है, बढ़ रहा है कॉलेज। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। ये मौलाना का पैगाम भी था, हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और शिक्षा की उन्नति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर बता रहे हैं, अभी हम लोगों ने नई ब्रांचेस खोली। आज की दुनिया जो है कंप्यूटर की दुनिया है। हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस हमारा बहुत पुराना चल रहा है। अभी 1.5 साल पहले डॉक्टर साहब ने मिल करके उन्होंने शुरू किया AIML डाटा साइंस। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी नहीं कर पाए हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो ये सब चीज़ें अच्छा, और अनफॉर्चुनेटली इसका करिकुलम तक नहीं है। वो इन लोगों को मना के इन लोगों ने बनाया करिकुलम इसका कि नहीं, तो अब बच्चे उसमें आ रहे हैं। लेकिन आप भी इस पैगाम को पहुंचाइए कि अगर आने वाली दुनिया में, आने वाले दिनों में साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, यही जो है फ्यूचर, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी यही है। इसमें जैसे बच्चे आएंगे, और हमारे बच्चे दिमाग में किसी से कम नहीं है, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमने पॉलिटेक्निक खोला है जी, एक पॉलिटेक्निक हम लोग खोला है। अभी 350 350 बच्चे को हम लोग ले रहे हैं उसमें, तो आगे बढ़ी चीज़।